So welcome to the dear students. This is another topic. This is a new topic which I am starting today here, and that is the torsion in the circular shaft. You understand? तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट, इसमें पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर्स होंगे, न्यूमेरिकल्स भी फाइंड आउट करेंगे. जितने भी इसमें केसेस आएंगे दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो टुडे द पार्ट फर्स्ट जो मेरा लेक्चर का है दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, that is torsion in circular shaft. Now first of all we will discuss what is torsion, what is twisting movement. As you know that torsion क्या है, twisting movement क्या है, the movement about the normal axis. जब कोई movement आपका normal axis के ऊपर हो, this is your normal axis suppose, and movement about the normal axis, this is called the torsion or the twisting movement. When the shaft is subjected to the torque, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है कि torsion in the circular shaft. When the shaft is subjected to the torsion, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. When the shaft is subjected to torsion or twisting moment, torsion oblique कर लो, twisting moment. You understand? Most of the elements which transfer the power from one place to another place, they are subjected to the torsion. जितने भी एलिमेंट्स हैं जब एक प्लेस से they have to transfer the power to the other place, they are subjected to the torsion. Whereas this your shaft, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है to transfer the power from one place to another place. You understand this? And if the objective of the shaft is to transfer the power from one place to another place, so then 100% it is subjected to the torsion. You understand this thing? इसके ऊपर क्या होगा? Torsion act करेगा, twisting movement इसके ऊपर act करेगा, because the shaft is transferring the power from one place to another place. So power means what? Power means in terms of the mechanical work from one place to another place. And you know that the work is the form of energy, or you can say this is the power, right? So let us take the case here of the turbine and the generator, which is connected by the shaft. Turbine is producing the power. Turbine में क्या है? Power produce हो रहा है, and it is giving to the generator to store the power. Now how this turbine will give the power to the generator? That is with the help of the shaft. You understand? So with the help of the shaft, the power is transferred from turbine to generator. You understand this? And in this case, when the power is transferred from turbine to generator, this shaft which is connecting both the generator and the turbine, that is under the torsion. How it is under the torsion? Just first understand. As you say that turbine is rotating clockwise direction, means torque on the turbine is shown here, that is clockwise. So turbine will apply the torque on the shaft. कैसे पावर ट्रांसफर होगा? टरबाइन जो है वो शाफ्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई करेगा
and the torque will apply the shaft will apply the torque on the generator and the generator start rotating in the clockwise direction. You understand? टरबाइन शाफ्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई करेगा और शाफ्ट जो है वो टरबाइन के ऊपर टॉर्क अप्लाई करेगा और टॉर्क जो है जनरेटर जो है दैट स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. In terms of this, as the generator is rotating in the clockwise direction, so generator will also apply the torque on the shaft at this end anti-clockwise direction. इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना करके बताता हूँ. जहाँ पे सपोज ये आपका टरबाइन है, राइट? तो दिस इज योर ये शाफ्ट, राइट? एंड और ये आपका इसके साथ आपका ये दिस इज योर जनरेटर. यू अंडरस्टैंड? ये आपका टरबाइन, ये आपका जनरेटर, राइट? इस तरीके से. अब देखिए ये टरबाइन जो है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. पहले टरबाइन देखेंगे कि ये किस तरीके से शाफ्ट को लगाएगा. ये टरबाइन का जो शाफ्ट टॉर्क है दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये शाफ्ट के ऊपर जो लगाएगा टॉर्क दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? जहाँ से कर लीजिए शाफ्ट के ऊपर ये कैसे लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क लगाएगा जी यहाँ पे, राइट? और इस एंड के ऊपर ये जो शाफ्ट है वो जनरेटर के ऊपर जो टॉर्क अप्लाई करेगा वो क्या करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जहाँ हुआ और ये जहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा, राइट? समझ आ गई बात? टरबाइन विल अप्लाई द टॉर्क ऑन द जनरेटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जो दूसरा एंड होगा इसका जो विच इज कनेक्टेड विद द जनरेटर, तो जनरेटर के ऊपर जो टॉर्क लगेगा दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द जनरेटर विल स्टार्ट रोटेटिंग. नाउ ये हो गया टरबाइन किस तरीके से शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगा रहा था. यू अंडरस्टैंड? नाउ or you can say that how the power is transferred from the turbine to the generator. Turbine will apply the torque on the shaft and the torque will apply the shaft will apply the torque on the generator and the generator start rotating. As the generator is rotating in the clockwise direction, मैंने इसको फिगर को थोड़ा सा फ्री बॉडी के लिए सेपरेट किया है जहाँ से. तो ये जनरेटर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हाउ दिस जनरेटर विल अप्लाई द टॉर्क ऑन द शाफ्ट, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क लगेगा एंड दिस टॉर्क दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द जनरेटर, राइट, एट दिस एंड. यू अंडरस्टैंड दिस? अब इस एंड के ऊपर अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इस एंड के ऊपर जो आपका टॉर्क होगा वो क्या होगा? ऐसे कर लो. इस एंड के ऊपर जो आपका टॉर्क होगा वो कैसे होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? अगर इसमें जनरेटर विल अप्लाई द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऑन द शाफ्ट एंड द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट द इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क will apply on the shaft. You understand? तो जहाँ से देख लीजिएगा कि टरबाइन ने इसके ऊपर लगाया और इसके ऊपर ये इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क इसका हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका. यू अंडरस्टैंड?
इस तरीके से जे टार्क आपका जनरेटर के ऊपर लगा और जनरेटर ने जे टार्क लगा दिया। यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द वे हाउ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द टार्क। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि टार्क जो है पहले टरबाइन टार्क लगाएगा शाफ्ट के ऊपर, एंड द शाफ्ट विल अप्लाई द टार्क ऑन द जनरेटर एंड द जनरेटर स्टार्ट रोटेटिंग। एज द जनरेटर स्टार्ट रोटेटिंग, generator will apply the equal and opposite torque on the shaft at this end, means the end which is connected to the generator, उस एंड के ऊपर शाफ्ट के ऊपर वो कौन सा शाफ्ट टार्क लगाएगा? दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टार्क ऑन द दिस एंड, इक्वल और अपोजिट टार्क इस एंड के ऊपर लगाएगा। एंड द अदर एंड ऑफ दिस, अदर एंड के ऊपर जो टार्क होगा दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है सो दिस इज क्लॉकवाइज। यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज द वे हाउ द टार्क इज सब्जेक्टेड, हाउ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द टार्क। यू अंडरस्टैंड दिस? तो जहां से यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हेन द पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ द शाफ्ट इज अंडर the torque. You understand? Or you can say shaft is subjected to the torque. You understand this thing? तो इस तरीके से इसका टार्क लगेगा। यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? अब देखिए, इफ़ आई विल ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम, ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रा करें शाफ्ट का, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। दिस इज़ योर फ्री बॉडी डायग्राम, ये वाला, ये पार्ट ले लें आप। दिस इज़ फ्री बॉडी डायग्राम का ये पार्ट ले लें। तो मैं इसको एलेबोरेट करके जहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। So this is your free body diagram, right? तो फ्री बॉडी डायग्राम में जहाँ पे आपने देखा कि जे जो आपका टार्क है दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज टार्क, और जे जो आपका टार्क है दिस इज़ क्लॉकवाइज। जे अगर आपका टी है, मैं कहता हूँ दिस इज़ योर टी डैश, राइट? तो सो दिस इज़ द वे शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द टार्क। और if I will apply the equilibrium equation here, अगर मैं equilibrium equation जहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो first point is whether we can apply the equilibrium equation here, because equilibrium equations can only be applied in that case when the body is at static. जब आपकी कोई बॉडी स्टैटिक में है, स्टेशनरी है, तो उस केस में हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं। बट आई एम सेइंग कि आई एम अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन हियर एज द बॉडी इज रोटेटिंग, मीन्स शाफ्ट क्या है जी आपका? रोटेटिंग, इट इज़ रोटेटिंग, एंड स्टिल आई एम अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन हियर। व्हाई आई एम अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन हियर, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, उससे बाद में समझते हैं, राइट? तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसका क्या होगा? देखिए, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं लगेगा। देयर आर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। बट इन केस ऑफ द शाफ्ट ओनली वन इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट वी कैन यूज देयर, दैट इज सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एम मीन्स सिग्मा टी इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पे से देख लीजिए, ये आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज है मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ टी, और ये क्लॉकवाइज है तो माइनस आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं सिग्मा टी इज इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड? मीन्स द नेट टॉर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द शाफ्ट दैट शुड बी इक्वल टू 0। नेट टॉर्क जो दोनों साइड के ऊपर है वो 0 होना चाहिए। ये तभी 0 होगा when the shaft is rotating with a constant velocity. You understand? If it is rotating with a constant velocity, then we can use the equilibrium equation. Constant velocity अगर हो, शाफ्ट जो है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करता है, तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज एज यू नो सिग्मा टी आपने ये पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में,
sigma t, this is equal to I into alpha. What is your alpha? Alpha is the angular acceleration. Alpha क्या है आपका? This is the angular acceleration. अगर आपका sigma t does not equal to 0 है, understand this thing, अगर इसका sigma t doesn't equal to 0 है, it means that alpha does not equal to 0, कि जो आपका angular acceleration होगा वो 0 नहीं होगा। और अगर angular acceleration आपका 0 नहीं होगा तो it means कि velocity आपकी कांस्टेंट नहीं है, velocity is not constant, you understand? तो velocity आपकी कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो आपकी कंडीशन होगी, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम, लेकिन ये जो आपकी इक्वेशन है जिसमें आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दैट यू कैन से दैट कंडीशन इज कॉल्ड द, मैं लिख लेता हूं जहां पे वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट? When the velocity is constant, कौन सी velocity? Angular velocity is constant because the shaft is rotating. When the angular velocity is constant, so you can say this is the condition of dynamic equilibrium. ये आपकी कंडीशन डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। और जैसे इन केस ऑफ शाफ्ट आपने देखा है, इन केस ऑफ शाफ्ट जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया था, तो उसमें आपने देखा सिग्मा टी इज इक्वल टू 0, राइट? सिग्मा टी इज इक्वल टू 0 तो मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे आपको पता, मैंने बताया सिग्मा टी क्या है, आई इंटू अल्फा। तो सिग्मा टी अगर 0 है तो अल्फा 0 होगा, तो सिग्मा टी 0 हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सिग्मा टी इज इक्वल टू 0, अल्फा इज 0, और ये हमें शो करता है कि एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन इज 0। कोई एंगुलर एक्सेलेरेशन ना ये बढ़ेगी ना कम होगी, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन जहाँ पे नहीं है, 0 के बराबर है, तो आपका जो वेलोसिटी होगा इस केस में, वेलोसिटी क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। यू अंडरस्टैंड? So when the velocity is constant, what is the definition of the dynamic equilibrium? क्या है? जब आपका velocity constant है तो वो जो कंडीशन होगी, that condition is the dynamic equilibrium. तो we can say that equilibrium equations we can use in the static conditions as well as the dynamic condition. डायनामिक कौन सी कंडीशन? मीन्स इक्विलिब्रियम डायनामिक कंडीशंस वेयर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है और कंडीशन आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में वी कैन यूज द कौन सी इक्वेशन? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज किया था, जहां पे सिग्मा टी इज इक्वल टू 0 मीन्स बोल लिया, थर्ड जो इक्वेशन थी सिग्मा टी इज इक्वल टू 0, और वो प्रूव भी हो गया, टी माइनस टी डैश दिस इज इक्वल टू 0। एंड दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन
because we are using the equilibrium equations only in case of the static conditions. What the question is here the shaft is rotating. How we can use the equilibrium equation? So it means if there is the shaft is rotating, but this shaft that is in the dynamic equilibrium, you understand? Means velocity of the shaft is constant. Angular velocity of the shaft is constant. It is not increasing, not decreasing. It is constant. And if this is the condition, we can use the equilibrium equations here. You understand this? This thing is clear to you? Dynamic equilibrium क्या है? Static equilibrium तो आप जानते हैं कि static equilibrium के केस में when the body is static, when the body is stationary, we use the equilibrium equations there. But when the body is in motion, then how we can use the equilibrium equations there? Means in case of the dynamic equilibrium and the shaft that is in the dynamic equilibrium. Shaft जो आपका है वो क्या है? आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर है. शाफ्ट में इस केस में शाफ्ट के केस में जो आपकी वेलोसिटी है, angular velocity है, that is constant. That is not increasing or decreasing. So in this case we can use the equilibrium equation. You understand this? So these things are clear to you, that how when the shaft is subjected to a torsion. This is I explained you as मैं दोबारा इसको एक दफ़ा आपको बता देता हूँ. Turbine is producing the power and it is giving to the generator for storing. You understand? And this power is transferred by means of the shaft, जो बीच में shaft है. And during this condition, जब ये process होगा, the shaft is under the torsion. How the shaft is under the torsion, ये मैंने आपको बताया था कि this turbine is rotating in the clockwise direction. This turbine will apply the torque on the shaft, and the shaft will apply the torque on the generator, and the generator start rotating. ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में ब्रेक करके आपको बताया था ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टार्क दैट हाउ इट अप्लाइज एज द टर्बाइन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो शाफ्ट का ये जो पार्ट होगा ये जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज टार्शन जहाँ पे होगा. यू अंडरस्टैंड? तो जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टार्क होगा तो जो इस एंड का होगा जनरेटर जिसके साथ कनेक्टेड है, जो दूसरा एंड होगा, क्योंकि यहाँ पे टार्क के केस में क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है. इफ द टार्क टी इज एंटी क्लॉकवाइज हियर, तो एट द अदर एंड ऑफ दिस द टार्क दैट शुड बी क्लॉकवाइज. तो जहाँ पे क्लॉकवाइज होगा तो इसलिए आपका जनरेटर दैट स्टार्ट रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये आ गया टर्बाइन इज अप्लाइंग द टार्क ऑन द जनरेटर शाफ्ट. Now how the shaft is applying, how the generator is applying the torque on the generator, just understand. Generator is rotating clockwise direction. It will apply the torque here, anti-clockwise direction जहाँ पे, और जो दूसरा एंड होगा इसका ये क्लॉकवाइज होगा. ये कौन सा है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बैलेंस हो गया. ये आपका क्लॉकवाइज और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये पहला जो जहाँ पे था वो क्लॉकवाइज, ये बैलेंस हो गया. यू अंडरस्टैंड? तो नेट टॉर्क इन दिस केस, नेट टॉर्क जो आपका होगा वो क्या होगा? आपका नेट टॉर्क दैट इज इक्वल टू 0. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ द टॉर्क, हाउ द शाफ्ट्स आर सब्जेक्टेड टू द टॉर्क ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यू अंडरस्टैंड? तो दिस थिंग इज क्लियर. नाउ अब सेकेंड इसमें एक केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस एज पर द चैप्टर. अगर आप ध्यान से चैप्टर को देखें तो मैंने लिखा है चैप्टर में टॉर्शन इन द सर्कुलर शाफ्ट. आई हैव नॉट टेकन एनी अदर शेप, नॉट रेक्टेंगुलर शेप, एनी अदर शेप मैंने नहीं लिया. मैंने सिर्फ टॉर्शन आपका सर्कुलर शाफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. वाई आई हैव नॉट टेकन, आई हैव नॉट कंसिडर्ड द अदर शेप ऑफ द शाफ्ट हियर. तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. हेडिंग इसका लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका कंसेप्ट है. वाई द सर्कुलर shafts are considered
not rectangular. हम सिर्फ सर्कुलर शाफ्ट को ही क्यों कंसिडर करते हैं टू ड्राइव द टॉर्शनल इक्वेशन? रेक्टेंगुलर शाफ्ट को हम कंसिडर क्यों नहीं करते फॉर दिस केस टू ड्राइव द इक्वेशन? देखिए, ये सर्कुलर शाफ्ट है, दिस इज आफ्टर ट्विस्टिंग आई एम सेइंग, ये आपका आफ्टर ट्विस्टिंग है। You understand? So after twisting, if you will see at each and every section of the length में आप different section ले लीजिए, at each and every section of the length you will find that all these sections are circular, right? अगर कोई भी सेक्शन आप ले लें, so all these sections are circular. राइट? इसी तरीके से हम दूसरा आपका रेक्टेंगुलर लेते हैं। आफ्टर ट्विस्टिंग देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कैसे बनेगा। ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये इस तरीके से था। और जहाँ पे देखिए कि आफ्टर ट्विस्टिंग ये आ गया, आफ्टर ट्विस्टिंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन शाफ्ट। तो ये आपका आ गया आफ्टर ट्विस्टिंग सर्कुलर शाफ्ट। यू अंडरस्टैंड? Just see here, there are the two cases. I have taken the two cross sections of the circular shaft, two cross sections of the shaft. That one is the circular shaft and the another one is the rectangular shaft. The figure which is shown here, that is figure 1 and figure 2, that I have drawn after the twisting. You understand? Say both these shafts are twisted at some angle. तो एक एंगल के ऊपर इनको ट्विस्ट किया है, and after that we got this type of the diagram. In case of the circular shaft, first we will discuss the circular shaft here. So in case of the circular shaft, if this is the entire length of the shaft, this is the entire length of the shaft,
And on the entire length of the shaft, if you will take any of the section of the cross section, कोई भी सेक्शन ले लीजिए क्रॉस सेक्शन का throughout length, you will find that each and every section or cross section here, that is circular. You understand that? Means before twisting, the cross section is circular, and after twisting, again the cross section is circular. So you can say that there is no distortion, no change in the shape of the shaft. You understand here? सर्कुलर शाफ्ट में आपने देखा कि इसकी आपने इसको ट्विस्ट किया किसी एंगल के ऊपर, तो ट्विस्ट करने के बाद भी जो इसका क्रॉस सेक्शन था, किसी भी सेक्शन के ऊपर क्रॉस सेक्शन इसका ले लीजिए आप, सो हर सेक्शन के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन होगा वो आपको क्या मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा. यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज हियर, or you can say its cross section will not distort at all. If it is circular, that will remain circular after twisting. But now come to this rectangle cross section. ये आपका क्रॉस सेक्शन, ये आपका रेक्टेंगल था क्रॉस सेक्शन, बट आफ्टर ट्विस्टिंग आप देखिए इसमें डिस्टोरेशन हो गया. यू अंडरस्टैंड? और अगर किसी भी सेक्शन के ऊपर चले जाइए आप, एंड ऑफ द इंटायर लेंथ ऑफ द जो भी रेक्टेंगुलर शाफ्ट का लेंथ है, इफ एनी सेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, रेक्टेंगुलर शाफ्ट, यू विल फाइंड हियर देयर इज ए डिस्टोरेशन हियर. क्रॉस सेक्शन इज नॉट सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन हैज चेंज्ड, क्रॉस सेक्शन इज नॉट रेक्टेंगुलर, क्रॉस सेक्शन इज डिस्टॉर्टेड. You understand this? So this is the reason that this is before twisting its cross section is rectangle, but after twisting its cross section is not rectangular, what distorted. Whereas in circular shaft, before twisting its cross section is circular, and after twisting its cross section is also circular. You understand? अब देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन मिला हमें. बाय नो द क्वेश्चन इज कि बाय द सर्कुलर शाफ्ट्स आर कंसिडर्ड और ये नहीं हम कंसिडर करते. रीजन इज जस्ट अंडरस्टैंड हियर, व्हेन वी विल ड्राइव द इक्वेशन, torsional equation, when we drive the torsional equation, we will take one assumption, and that assumption is very important. इसके बाद में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि all the transverse section or the plane or cross section that remain plane are undistorted after twisting. उस केस में if we want to drive the equation, if we have to drive the equation, a torsional equation, अगर हमें ड्राइव करना है, सो दैट इज ईजी टू ड्राइव द टॉर्शनल इक्वेशन. रीज़न आई विल टेल यू लेटर ऑन. इसी लेक्चर में इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं कि क्यों वो ईजी होगा. कि अगर प्लेन आपका जो बिफोर ट्विस्टिंग है, आफ्टर ट्विस्टिंग भी प्लेन सेम रहता है, तो क्यों ईजी होगा. और जहाँ पे डिस्टॉर्शन हुआ है, तो जहां पे इफ वी हैव टू ड्राइव द इक्वेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, और यू कैन से नॉट पॉसिबल टू ड्राइव द इक्वेशन. इन दिस केस वी गॉट सम empirical equations, or we assumed some empirical equations from experiments, but we cannot drive the equations in this case. Very not possible at all. So you can say before twisting the plane is same, after twisting the plane is same. This is in the case of the circular shaft, and we can drive the equation easily in this case. So this is the reason we only study about the circular shaft, we don't study the rectangular shaft here. You understand this?
सो दिस इज द रीज़न। तो जहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, नाउ नेक्स्ट पार्ट आप देखिएगा कि नाउ वी विल, जो इक्वेशन आपकी जो हमने ड्राइव करनी है वो कौन सी इक्वेशन थी आपकी? टॉर्शनल इक्वेशंस को हम ड्राइव करने के लिए टॉर्शनल इक्वेशन, दिस इक्वेशन वी हैव टू ड्राइव, torsional equation, this equation we have to drive, and in case of the circular shaft we consider the circular shaft, तो हम इक्वेशन को easily कर लेंगे ड्राइव। वो होती है T अपॉन J टाउ अपॉन R, दिस इज इक्वल टू G थीटा इंटू L, राइट? दिस इज योर टॉर्शनल इक्वेशन we have to drive, and this equation we will drive only in case of circular shaft. We will not drive this equation in case of a rectangular shaft. Why we cannot drive the equation in case of the rectangular shaft? जब हम इसकी assumptions को study करेंगे then you come to know, right? So next देखिए आप, सो जहाँ तक क्लियर है, अब नेक्स्ट देखिएगा। सो इन ऑर्डर टू ड्राइव द इक्वेशन, or you can say in order to drive the torsional equation, we have made some assumptions here. कुछ important assumptions हैं वो हमने जहाँ पे assume की है for driving the torsional equation. तो assumptions क्या है आपकी? What are the assumptions? इसको आप नोट कर लीजिएगा। assumptions, first assumptions है the materials जो हम लेंगे for circular shaft, materials are, the material is homogeneous and isotropic, right? Material of the shaft कर लो, materials, not material, material of the shaft is homogeneous and isotropic. First assumption is this, कि material shaft का क्या होना चाहिए? Homogeneous and isotropic. Second, stresses are within the proportional limit. जो stresses हैं आपकी, second assumption है आपकी, stresses are within the proportional limit. You understand? Stresses that should be within the proportional limit. Third, this is very important assumption, and on the basis of this assumption we can drive the equation, torsional equation. तो क्या है? All the transverse sections remain plane or undistorted. All the transverse sections remain plane or undistorted after twisting, right?
all the transverse section, write down, all the transverse sections remain plane are undistorted after twisting. तो जहाँ पे सर्कुलर शाफ्ट ले रहे हैं, इन अदर वर्ड्स यू कैन से, इन अदर वर्ड, diameter of the shaft that should be state, diameter shaft का क्या होना चाहिए, remain state after twisting. In other words, diameter of shaft remain straight, remain state after twisting, right? So these are the three very important assumptions which we have taken for driving the torsional equations. ये हम assume करेंगे ये assumptions, and on the basis of these assumptions we will drive the torsional equation. First assumption is कि जो one by one we will discuss material of the shaft. जो shaft का material होना चाहिए, जो shaft का आपका material होना चाहिए, that material should be homogeneous or isotropic. Homogeneous और isotropic material होना चाहिए. First assumption, that is easy, no need to explain. Stresses are within the proportional limit. Second देखिए, इसको थोड़ा सा explain करेंगे हम. Stresses are within proportional stresses are within the proportional limit. You understand? What does it mean? Why required? Why we require this type of assumption? हमें ये assumption क्यों चाहिए? Stresses are within the proportional limit. Why we require this assumption? Because we want to use the Hooke's law. हम क्या है कि हमें Hooke's law को यूज करना है. अब Hooke's law को हमें क्यों यूज करना है जहां पे? So as you know that in order to find the equation of the stress, अगर हमें स्ट्रेस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, डिफॉर्मेशन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन, एंड बाय यूजिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप वी कैन calculate the value of the stress, or by using the Hooke's law we can calculate the value of stress. So you can say that stresses we cannot calculate directly. For calculating the stresses, first we have to find the equation of the strain. पहले हमें इक्वेशन स्ट्रेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, हमें डिफॉर्मेशन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि इसकी डिफॉर्मेशन कैसे ही है, क्या वो लीनियर है, क्या वो पैराबोलिक है, क्या वो इक्वल है. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन, एंड आफ्टर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेन वी विल यूज द हुक्स लॉ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस. यू अंडरस्टैंड? सो ये जो आपका अजम्पशन है कि स्ट्रेसेस आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए, उसके बाहर स्ट्रेसेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज द हुक्स लॉ that only we can apply within the proportional limit. Proportional limit के अंदर ही हम Hooke's law को हम apply कर सकते हैं. After proportional limit we cannot use the Hooke's law. You understand this? So this is the second assumption, very important assumption to understand. कि ये assumption हमने क्यों लिया कि
stresses that should be within the proportional limit, so that we can use the Hooke's law here. We can apply the Hooke's law here. And Hooke's law क्यों apply करना है? In order to find the equation of the stress, first we will find the equation of the strain, and by using the Hooke's law we can calculate, we can find the equation of the stress, right? So this is the explanation, you can say, of the part number second. जो आपका assumption second था, ये उसका part, इसका explanation, I think this is clear to you. अब third आ जाए, this is a very important. जो आपका थर्ड पार्ट है, सो थर्ड क्या था? ऑल द ट्रांसवर्स, ये लिखूंगा नहीं, जहां से पढ़ेंगे हम, ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शंस रिमेन प्लेन एंड अनडिस्टॉर्टेड आफ्टर ट्विस्टिंग. जितनी भी ट्रांसवर्स सेक्शन हैं आफ्टर ट्विस्टिंग मूवमेंट, और यू कैन से आफ्टर अप्लाइंग द ट्विस्टिंग मूवमेंट, वो आपकी सेक्शन सेम रहनी चाहिए, प्लेन रहनी चाहिए, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए. दैट शुड रिमेन सेम. जैसे मैंने आपको सर्कुलर शाफ्ट के बारे में अभी जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलर शाफ्ट आफ्टर ट्विस्टिंग, इफ यू विल फाइंड एनी सेक्शन ऑन द लेंथ ऑफ द circular shaft, you will notice this thing, that all the sections are same, that is they are still circular, there is no distortion there. तो वो आपकी assumption जो थी, वो जो third assumption का point था, इसलिए मैंने कहा था कि third assumption is very important. So only we can derive the equation of the circular shaft. We cannot derive the equation of the rectangular shaft, because rectangular shaft के ऊपर after twisting, you have seen that the cross section of the rectangular shaft, that is distorted, that has changed the size, changed the shape, and we cannot apply, you can say, we cannot use this for driving the torsional equations. You understand this? तो ये एजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस एजम्पशन के मद्देनज़र हम सर्कुलर शाफ्ट का इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट वी कैन ड्राइव द टॉर्शनल इक्वेशन, बट ऑन द बेसिस ऑफ द रेक्टेंगुलर शाफ्ट वी कैनॉट ड्राइव द टॉर्शनल इक्वेशन. यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखिए जहाँ पे कि ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स जो उसका वो है डायामीटर है, वो भी आपका क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए यहाँ पे, सपोज आई विल टेक ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. इट इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. यू अंडरस्टैंड? सो आई हैव टेकन द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और तो ये इसका सेंटर आ गया. ये आपका इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है. यू अंडरस्टैंड दिस? जहाँ पे कर लीजिए, ये सेंटर पॉइंट. अब देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कि ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आर अनडिस्टॉर्टेड आफ्टर द दिस वन. So I have taken only this diameter, but you know that in this cross section there are the infinite number of the diameters are there. I will only consider this diameter, right? अब देखिए, as per the definition of this or as per the assumption number 3, he says that this diameter that is remain same, that is remain plane. The transverse section जो है आफ्टर ट्विस्टिंग, इफ आई विल अप्लाई द ट्विस्टिंग मूवमेंट टू दिस, अगर मैं इसको ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? अगर ये डायमीटर आपका स्टेट है, ये डायमीटर आपका इस तरीके से है, तो आफ्टर ट्विस्टिंग भी जो डायमीटर होगा वो आपका क्या होना चाहिए? स्टेट होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? इफ आई विल अप्लाई द ट्विस्टिंग मूवमेंट लाइक दिस, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट मैं अगर लगाता हूँ जहाँ पे,
right? If I will apply the twisting moment like this, तो J अगर आपका पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट A, this point is go say A dash, this is the point B, ये जहाँ पे जाएगा, this is the another point, ये जहाँ पे चला गया, this is the another point जहाँ पे चला गया, this is the another point जहाँ पे जीरो हो गया. You understand? इसी तरीके से J वाला पॉइंट, this will go like this, this will go like this, this will go like this, this will go like this. अगर J पॉइंट है तो जहाँ पे J पॉइंट आ गए, and if this point, that will go like this जहाँ पे, and this point that will go like this. You understand? तो जहाँ पे आपने देखा the diameter of the diameter of this cross section that remain plane undistorted state after twisting. You understand? तो जो इसका डायमीटर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के केस में, इफ आई विल अप्लाई द टार्क हियर लाइक दिस, तो क्या होगा, जब टार्क अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट A है वो A डैश हो जाएगा, ये आपका जो पॉइंट B है इस तरीके से चला जाएगा, B आपका जहाँ पे B डैश हो जाएगा, C आपका जहाँ पे C डैश, D डैश और E डैश, राइट. ये पॉइंट L ये M जहाँ पे चला जाएगा, K N चला जाएगा. तो लाइकवाइज दिस, तो जहाँ पे आप देखिए पहले इसका डायमीटर इज लाइक दिस, स्ट्रेट था, प्लेन है, अनडिस्टॉर्टेड है, एंड आफ्टर द ट्विस्टिंग मोमेंट यू हैव सीन दैट इट्स डायमीटर इज अगेन स्ट्रेट, अनडिस्टॉर्टेड, दिस इज plane. You understand? So you can say that there is no change in the shape of the diameter. Diameter will remain same, right? This is in case of circular shaft. ये आपका था in case of circular, in case of the circular shaft. You understand? But in case of the rectangular shaft, अगर इसके अलावा तो जहाँ पे आपने देखा डायमीटर डिस्टॉर्टेड नहीं हुआ, तो अगर इसके अलावा कोई और क्रॉस सेक्शन होगा, रेक्टेंगुलर होगा, कोई और क्रॉस सेक्शन होगा, तो जो आपका वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज लाइक दिस. So that is change like this. Right? तो जहां पे आप देखिएगा कि ये मतलब आप इस तरीके से राइट लाइक दिस, तो डिस्टॉर्शन होगा. पहले डायमीटर क्या था आपका, प्लेन था, और आफ्टर डिस्टॉर्शन यू हैव सीन द डायमीटर्स लाइक दिस, राइट. तो इस केस में आपका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. बट सर्कुलर केस में यू हैव सीन दैट द डायमीटर सेम, डायमीटर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई इसमें चेंज नहीं है. अब हमें ये क्यों चाहिए? बाई दिस अजम्पशन वी रिक्वायर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट.
जी ध्यान से समझिए, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डायमीटर स्टेट आफ्टर ट्विस्टिंग। ये जो आपका assumption नंबर 3 था, इसका आप समझिए। diameter is straight after twisting. So understand this concept. In order to देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस को ड्राइव करना है, राइट। इन ऑर्डर, इसे ध्यान से समझिएगा, इन ऑर्डर टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस। अगर हमें स्ट्रेस की इक्वेशन को ड्राइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, in order to drive the equation of the stress, first we have to find out distribution of internal force, right? कि इंटरनल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? We need to know, हमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्स फाइंड आउट करना है, राइट। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफॉर्मेशन इसको पूरा लिख लीजिए आप। ऐसे करके लिखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन of internal, in order to understand the distribution of internal force, we need to understand the distribution of the deformation. अगर हमें इंटरनल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? we need to understand distribution, we need to understand the distribution of deformation. हमें डिफॉर्मेशन का अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डिफॉर्मेशन हमारी कैसे होगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या हमारी डिफॉर्मेशन जो है दैट इज़ लीनियर डिफॉर्मेशन है, पैराबोलिक डिफॉर्मेशन है, और यू कैन से इक्वल डिफॉर्मेशन है। अगर हमारी जैसे हमारी डिफॉर्मेशन होगी सेम टाइप वी विल गेट द इंटरनल फोर्सेस, राइट, बिकॉज द इंटरनल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, और यू कैन से
deformation is directly proportional to the internal forces. If your deformation is linear, so it means that the internal forces, they are also linear. If your deformation is equal, as in case of the axial loading के केस में क्या है, our deformation is equal, so linear forces are equal and we can calculate the stress by using that relation P upon A. P means that is the internal force upon the area. तो हमें स्ट्रेस की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए फर्स्ट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इंटरनल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंटरनल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या वो लीनियर है, क्या वो पैराबोलिक है, क्या वो इक्वल है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डिफॉर्मेशन। हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डिफॉर्मेशन का नेचर क्या है। यू अंडरस्टैंड दिस, कि हमारा डिफॉर्मेशन का नेचर क्या है, क्या वो पैराबोलिक है, क्या वो लीनियर है, एंड बेस्ड ऑन दैट हाउ द इंटरनल फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस हमारी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, बेस्ड ऑन दैट we will drive the equation of the stress. You understand? तो हम equation of the stress को ड्राइव कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, internal forces are directly proportional to the deformation, right? internal force क्या है, deformation के directly proportional है। अगर deformation किसी particular चीज़ की linear है तो internal forces भी आपकी linear होगी। अगर डिफॉर्मेशन आपकी पैराबोलिक है तो इंटरनल फोर्सेस आपकी पैराबोलिक होगी। तो लाइकवाइज so this is the case that we must need to understand the distribution of the deformation, and on that basis we will get the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्सेस के बेस में कि वो इंटरनल फोर्स आपकी लीनियर है, पैराबोलिक है, ऑन दैट बेसिस वी विल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस। इफ़ द इंटरनल फोर्सेस आर लीनियर, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस इज लीनियर। तो जहाँ पे मैंने वो एक डायग्राम थी वो ड्रा किया था वो मैंने मिटा दी, इसको कर लेता हूँ मैं। तो आई हैव टेकन द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एंड इन द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यू हैव सीन दैट जो आपकी फ्रॉम द top to bottom you have seen here, it is like this। ये मैंने ड्रा करके बताया था, ये I have just right। तो एज अ सर्कुलर दिस इज वेरी स्मॉल यू कैन से, तो मैं जहाँ पे इसको स्टेट ही कंसिडर कर लिया है। यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप देखिएगा, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट, एंड आफ्टर ट्विस्टिंग दिस पॉइंट गोज हेयर, दिस पॉइंट गोज हेयर, दिस पॉइंट गोज हेयर, और जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो आप देखिएगा ये जो डिफॉर्मेशन है आपकी, दिस इज द डायमीटर, नाउ द डायमीटर इज लाइक दिस। द डिफॉर्मेशन आपकी कैसे है, इट्स डिफॉर्मेशन इज लीनियर। अगर इसका डिफॉर्मेशन लीनियर है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इफ यू विल सी द डिफॉर्मेशन इज व्हाट, दैट इज द लीनियर डिफॉर्मेशन। और लीनियर डिफॉर्मेशन है तो आपका जो इंटरनल फोर्सेस होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, बिकॉज the
deformation is directly proportional to internal forces, or internal forces are directly proportional to the deformation, you can say. तो internal forces जो हैं वो directly proportional to the deformation है. If the deformation is linear here, तो internal forces that is also linear, and we will get the equation of the stress that is the linear. You understand this? तो linear equation of the stress हमें मिलेगा इस केस में. तो आज ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था, अब इसका जो सेकंड लेक्चर है उसमें सीधा हम क्या करेंगे, टॉर्शनल इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे. ये जो आपका इक्वेशन है T/J, दिस इज इक्वल टू τ/r g(θ/L). दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट equation to understand and very important, or you can say for any type of examination. उसका बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. बट बिफोर दैट, दिस इज़ द जो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक का था, लेक्चर नंबर 1. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो आपके आने वाले लेक्चर्स में जो आपके कंसेप्ट थे, वी हैव क्लियर्ड इट वेल. यू अंडरस्टैंड? तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. अभी आपको समझ आया होगा. इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूं कि जो आपकी थर्ड अजम्पशन मैंने लिया था, ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट रिमेन प्लेन आर स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्टिंग. जैसे पहले होंगे वैसे ही रहेंगे, प्लेन रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगी. वो क्यों नहीं होगी? कि अगर आपका डिस्टॉर्शन होता है तो हम उससे आपकी इंटरनल फोर्सेस का, वी विल नॉट फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, कि इंटरनल फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्या वो लीनियर है, क्या वो पैराबोलिक है, क्या वो इक्वल है. क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस. तो उसके लिए जो हमारा डिफॉर्मेशन होगा वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपका डिफॉर्मेशन लीनियर है, पैराबोलिक है या इक्वल है, तो ऑन दैट बेसिस वी विल ड्राइव द इक्वेशन. लेकिन अगर आपका डिस्टॉर्टेड है, तो डिस्टॉर्टेड होने के कारण जो हमारी इंटरनल फोर्सेस होंगी उनकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ेगी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, व्हाट इज़. कहीं आपको लीनियर दिखाई देगा, कहीं पैराबोलिक है, कहीं क्या है क्या नहीं है. तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस वी कैन नॉट कैलकुलेट इट प्रॉपरली देयर. तो जब इंटरनल फोर्सेस की आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली, हाउ यू कैन ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस. सो in the beginning we have told you that only we will take the circular cross section of the shaft, and in that case this is very easy to drive the equation of the torsional stress. Whereas in case of the rectangular cross section of the shaft, distortion जो उसमें होगी वो हर सेक्शन के ऊपर उसकी क्रॉस सेक्शन में डिस्टॉर्शन हो जाएगी, जिसके कारण we will not find the प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफॉर्मेशन. और डिफॉर्मेशन की आपके पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं है कि वो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, लीनियर है, पैराबोलिक है, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस. और अगर आपके पास इंटरनल फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, तो हाउ यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस. यू अंडरस्टैंड? सो दैट वाज द रीज़न व्हाई वी हैव नॉट कंसिडर्ड द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन शाफ्ट. हम सिर्फ सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर ही जो टॉपिक का नाम है वो किस लिए कंसिडर किया, इसलिए कंसिडर किया. आई थिंक नाउ द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, हो गई होगी. यू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज माई पार्ट लेक्चर नंबर 1. यू कैन से आई विल टेक द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन इन द सेपरेट लेक्चर. अगर जहाँ से करूँगा एक तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा, और एंड दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर. तो मोस्टली द स्टूडेंट्स विल नॉट सी दैट, दिस आई नो दैट. तो उसके लिए फ्रेश लेक्चर सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट जो सेकंड आपका इक्वेशन का डेरिवेशन है T/J, दिस इज इक्वल टू τ/r एंड इक्वल टू g(θ/L), दैट इज कॉल्ड द टॉर्शनल इक्वेशन. दिस इज माई इन द सेकंड लेक्चर, and so I will request to all the students
that second lecture is very important one to understand. First one is also important because we have learned so many concepts here, very important concept here, which are the very theoretical concept जो आपके हैं, आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स जो है उसमें मोस्टली ये कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं. यू अंडरस्टैंड दिस. तो ट्रांसफ़र पावर का केस में हमने टॉर्शन के ऊपर टॉर्क किस तरीके से एक्ट करता है वो पूरा डिटेल में आपको हर पार्ट में बताया. सिर्फ एक लाइन में नहीं बताया मैंने कि turbine will apply the torque on the shaft and the shaft will apply the torque on the generator and generator start rotating. I have just उसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरीके से टरबाइन शाफ्ट के ऊपर लगाएगा, शाफ्ट कैसे आगे लगाएगा, फिर जनरेटर कैसे टॉर्क को उसके ऊपर लगाएगा. तो आई हैव ट्राई टू explain the things in detail so that you can understand it well. So this is all today. Thank you very much.